Hello students, so today we will discuss about the next topic in change in profit sharing ratio, and the topic name is treatment of accumulated profit, reserves and losses. So what happens in this case, as we know accumulated profit का मतलब क्या होता है? Accumulated profit means profit which has been your accumulated, मतलब हम profit को जमा करके रखे हैं, ठीक है, इकट्ठा करना, that is the meaning of what accumulated profit. So since accumulated profit and reserves all are shown where, कहाँ पे इसको किया जाता है? It has been shown in the liability side of the balance sheet, ठीक है. तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा in case of change in profit sharing ratio? So there has been the two cases हो सकता है. First case, when this accumulated profit, reserves and losses are transferred, when these are transferred to capital account. पहला केस क्या होता है? When these are transferred to capital account. और नेक्स्ट केस क्या है? When these are not transferred to capital account. ठीक है, तो अब क्या करना है? सो इन केस ऑफ accumulated profit reserves, क्या क्या इंक्लूड करता है accumulated profits में? Accumulated profits and reserves, what does it includes? वो क्या क्या इंक्लूड करेगा? accumulated profits and reserves includes क्या क्या आएगा उसमें? फर्स्ट बिट इज योर से जनरल रिजर्व आ सकता है, ठीक है. इसके अलावा और क्या आएगा? इसके अलावा स्पेसिफिक रिजर्व्स सच एज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ सकता है हमारा, ठीक है. देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, so it is also a part of specific reserves, ठीक है. accumulated profit में क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस. so profit and loss account, credit balance. so these are all the part of what? accumulated profit and reserves, okay. और accumulated loss में क्या आएगा? what does it includes? accumulated losses, so accumulated losses includes क्या क्या includes कर सकता है? फर्स्ट पेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस. अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब क्या है? वो लॉस है. कहाँ शो होगा? इट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है. और ये जितना आइटम्स है accumulated प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, वेयर इट विल बी शोन? इट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में कहाँ शो होता है? ये लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. और लॉसेस में क्या आ सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, और फिक्टिशियस एसेट्स सच एज डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. So this is also a part of what? fictitious assets which has been considered as what? Considered as accumulated losses, ठीक है. So when these are transferred to capital account, जब हम बोलते हैं कि all these accumulated profits are transferred to capital account, that means it will not be shown in the balance sheet. इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग शो नहीं करेंगे, not to be shown in balance sheet. बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, ठीक है. तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? what will be the treatment? so treatment would be whatever the accumulated profits would be there, all accumulated profits and reserves should be distributed to all partners capital account. in which ratio? in old profit sharing ratio, ठीक है. that means what will be the journal entry? General entry would be say general reserve account debited, ठीक है. ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. so all this shows your liability balance, ठीक है. liabilities का मतलब क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस. उसको हम लोग डेबिट करके खत्म करेंगे. so general reserve account debited, WCR account debited, WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देन IFR अकाउंट डेबिटेड,
that is your investment fluctuation reserve, then profit and loss account, credit balance, debited in which ratio, to which ratio, all partners capital account. किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, all partners either capital और करंट अकाउंट हो सकता है, कौन सा रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। वाई, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट फॉर द पार्टनर्स, तो उन्हीं को मिलना चाहिए। सो सिंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वुड बी क्रिएटेड, मतलब उसका अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। व्हाट विल बी द नरेशन, नरेशन वुड बी बीइंग प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, being profits and reserves distributed in old ratio, profits and reserves distributed in old ratio, okay। So these are the part of what, these are all the part of accumulated profit, तो ये journal entry हमारा हो जाएगा। Now what happens in case of accumulated losses, ठीक है, जब हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस होगा तो जर्नल एंट्री हमारा क्या होगा, इन केस ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस। सिमिलरली व्हाट हैपेंस, लॉस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। डेबिट करने का मतलब क्या होता है, कम हो जाता है, एंड ऑल दिस एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड। सो व्हाट विल बी द एंट्री, इन केस ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इन केस ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है। एक्यूमुलेटेड लॉस में हमारा एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, टू योर एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट। क्या क्या आएगा इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, सॉरी डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ओके। Similarly to advertisement suspense account, to advertisement suspense account, कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। नरेशन क्या देंगे, being losses adjusted in or distributed in which ratio, in old profit ratio, okay। So this is the treatment of your what, of accumulated profit and losses when these are transferred to capital account or when these are not to be shown in balance sheet। वो कहाँ शो करेंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम शो करेंगे, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या था हम लोग का, सेकंड कंडीशन क्या है, when these are not transferred to capital account, जब हम ट्रांसफर नहीं करेंगे कैपिटल अकाउंट, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से दैट इट विल बी व्हाट, दैट मीन्स दिस अकाउंट्स आर नॉट क्लोज्ड, ये अकाउंट को हम क्लोज नहीं करेंगे, दिस अकाउंट्स आर नॉट क्लोज्ड, ओके। So next condition, second condition is your when these are not transferred to capital account, not transferred to capital account means accounts are not closed। इस केस में क्या होगा हमारा एंट्री, so in case of for adjusting accumulated profit and reserves and accumulated profit, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, account is not to be closed, that means we have to pass the single adjustment entry। So what we are required to do, we are required to calculate the gaining and sacrificing ratio, ठीक है। और रूल क्या होता है, gaining partner will compensate his amount of reserves or accumulated profit to whom, to the sacrificing partner's capital account, ठीक है। So in this situation what will be the journal entry, journal entry हो जाएगा gaining partner कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, कौन सा रेशियो में, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो
and this will be distributed in gaining ratio. Narration being adjustment of accumulated profit, that is the reserves and profits. ठीक है, so this is in case of which this is in case of accumulated profit. So now in case of your accumulated loss, so for adjustment of accumulated losses, लॉस को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट विल बी द एंट्री, जस्ट रिवर्स एंट्री पास करेंगे. क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट वुड बी डेबिटेड. तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट वुड बी डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट. जस्ट रिवर्स एंट्री हम पास कर रहे हैं. नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ accumulated losses, being adjustment of accumulated losses. Okay, so this is the treatment of second case, that is when these are not transferred to capital account. Okay, so let us see one example. Suppose क्वेश्चन में दिया गया है, सपोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस हैज बीन गिवन. ठीक है, क्रेडिट बैलेंस कितना दिया हुआ है, ₹50,000. अगेन जनरल रिजर्व, सपोज दिया है जनरल रिजर्व हैज बीन गिवन ₹10,000. ठीक है, एंड ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स, और ओल्ड रेशियो दिया है सपोज 3:2. ओल्ड रेशियो हैज बीन गिवन 3:2. Now with effect from say 1st April 2020, the ratio has been changed. The ratio has been changed to 5:3. रेशियो कितना चेंज हो गया, 5:3. पास द जर्नल एंट्री, पास द journal entry. Okay, pass the journal entry if accounts are not closed. Suppose बोला है accounts हमको close नहीं करना है. ठीक है, if the accounts are not closed, so what क्या होगा इसका ट्रीटमेंट. सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, we are required to calculate the what gaining और sacrificing ratio. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सो इन केस ऑफ ए का ओल्ड शेयर कितना था 3/5 और न्यू शेयर कितना है 5/8. एलसीएम हो गया 40, 5 8 जा 40, 8 6 जा 24, 8 5 जा 20, 5 5 जा 25. कितना हो गया -1/40. मतलब नेगेटिव आ रहा है, मतलब ए क्या कर रहा है, ए गेन कर रहा है. ठीक है, सिमिलरली बी का निकाल देंगे. बी का कितना आएगा, ओल्ड शेयर है 2/5 और न्यू शेयर कितना है 3/8. एलसीएम हो गया 40, 5 8 तो 48 2 16 -15. कितना हो गया 1/40. पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं. ठीक है, और कंडीशंस क्या है, अकाउंट्स आर नॉट क्लोज. दैट मीन्स सेकंड कंडीशन है. एंट्री क्या बनता है हमारा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, सो नाउ टोटल कितना हुआ हम लोग का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, हाउ मच इट हैज बीन गिवन 50,000 एंड जनरल रिजर्व हैज बीन गिवन हाउ मच, जनरल रिजर्व गिवन कितना दिया है 10,000. टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 60,000. ठीक है, 60,000 को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे. कौन से रेशियो में, शेयर में 1/40. एंट्री है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कौन गेन कर रहा है, ए. तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री हो जाएगा ए कैपिटल अकाउंट वुड बी डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, बी कर रहा है, सो टू बी कैपिटल अकाउंट. ठीक है, एंड व्हाट विल बी द अमाउंट
1 by 40 into 60,000. 1 by 40 into 60,000, and this is also 1 by 40 into 60,000. Okay, so whatever the amount could be, कितना आएगा ये आ गया आपका 1500, ये भी 1500 आएगा, और इसका भी कितना आएगा, दिस इज ऑल्सो योर 1500. ओके, नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट. ठीक है. ओके, so this is how we are required to pass the journal entry in both the cases. So that's all for today. Thank you.